Good morning, students. Today we're talking about. We'll talk about today differential equations. So, what is a differential equation? First, we'll just try to understand differential equation क्या होती है. So, before that, let us compare. Let's talk about algebraic equation. So what is an algebraic equation? So it is an equation between variables, say y square plus 4y plus 5 is equal to 0. So it is an equation between variables. So these are the variables. Y is the variable. Or x square plus xy is equal to 12. So this is another, in this x and y are variables. So that is an algebraic equation. So in this the quantities involve the variables and some constants, just like 4 and 5 and 12 here. So what is a differential equation? In a differential equation, so algebraic equation contains variables. Differential equation necessarily contains derivative. So an equation, it is an equation which contains, so first of all it is an equation. It is a left hand side, it has a right hand side. Now it contains derivative. Derivative क्या होता है? Derivative of one variable with respect to another variable. And this variable is dependent. One of the variables is dependent variable and another variable is independent. It means कि ये जो independent variable है, it can take any value, and जो dependent variable है, it really depends on the value given to the independent variable. Say for example, y square is equal to y is equal to x square. So x is independent variable and y is dependent variable. If we give x some value, y will take value accordingly. So it is now, it is derivative. We know derivative, y is a function of x. What is the derivative of y with respect to x? So derivative of y with respect to x is dy by dx. Now this is the first derivative, by the way. Then we can have another derivative, we can differentiate it again, then we will get a second derivative. For example, we will have a second derivative d2y by dx2. And an equation which contains derivative of a variable with respect to another variable is a differential equation. For example, now we'll show some, give some examples. So for example, we have dy by dx is equal to x square plus 5, for example. Now this is an equation. There is a left hand side, there is a right hand side, and it has one of the terms is derivative. So dy by dx. So this is a differential equation because it has derivative in it. So we can also write this equation is, now y is a function of x. If we are taking derivative of y with respect to x, अगर हम y का derivative ले रहे हैं, उसका मतलब है y is a function of x. So I can write f of x. Y is a function of x, so this is f of x. But इसका हम y का derivative ले रहे हैं, so f prime x is equal to x square plus 5. These are same because y is a function of x. I can write f of x. चूंकि y का derivative ले रहे हैं, I can take f prime. And sometimes we can write y जो है, y is a function of x. I can write just f y prime. So y prime is derivative of y with respect to x. So these are equivalent ways of saying the same thing. They are not different from each other. एक ही चीज को पेश करने के different तरीके हैं. So this is one example of differential equation. Let's take another example. d2y by dx2. Say it is 4 here plus 3 dy by dx plus 2y is equal to 4.
So ये एक इक्वेशन है, it has a left hand side, it has a right hand side. So it is an equation and it contains derivative. In fact, it contains first derivative भी इसमें है, second derivative भी है. So it is a differential equation. So this is a, ये भी differential equation है, ये भी differential equation है. So this is a differential equation. This is also a differential equation. Any equation which has a derivative of one variable with respect to another in it is a differential equation. So for example, if here I write, instead of this I write y is equal to x square plus 5, is this a differential equation? No. No, it is not a differential equation. However, it is an algebraic equation. Now in this, if I remove this term dy by dx, so I keep only this 4 d2y by dx, 2 plus 2y is equal to 4. So still it will remain a differential equation. If I remove this first term from it and only keep this much, is this differential equation? It is still a differential equation because there is a derivative in it. If I remove both these terms, I write only 2y is equal to 4. Is it a differential equation? No, it is not a differential equation because there is no derivative in it. So that is important point to understand. Now remember one thing, when we solve an algebraic equation, solution gives us solution of algebraic equation gives us what? It gives us number or numbers or a set of numbers. So when we solve, जब हम solve करते हैं algebraic equation को, तो हमें एक या एक से ज़्यादा नंबर मिलते हैं, वहाँ पे numbers मिलते हैं. Any type of numbers, they can be real numbers, irrational numbers, imaginary numbers, but we'll get numbers. When we solve a differential equation, what does that give us? So solution of differential equation gives us function or set of functions. So that was the introduction to differential equation. Let us now move ahead, and now we'll talk about types of a differential equation. So we can classify differential equations on various patterns. So one of them would be, we will differentiate on, let's say we have ordinary differential equation. For differential equation we write short DE, and then there is partial differential equation. So let us move to this. Now what is an ordinary differential equation? Now we have dependent variable y, it depends on independent variable x. We say y is f of x. So y depends on only single independent variable. So there is only single independent variable, and this is your dependent variable. तो अगर डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करता है, उसके जरिए वहां डेरिवेटिव बनेगा और फिर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी. वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगी दैट विल कॉल इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. जैसे कि हमने वहां ऊपर लिखा, जो हमने इक्वेशंस दी, तो दोबारा लिखते हैं, दोबारा नहीं लिखते हैं हम. से d2y by dx2 से कोएफिशिएंट 3 प्लस 4 dy by dx प्लस y इज इक्वल टू 3. सो इसमें हमने y का डेरिवेटिव लिया x के साथ, यहां भी 2 बार किया सेकंड डेरिवेटिव, यहां 1 बार किया, मगर सिर्फ y जो है वो x पर डिपेंड करता है, इसलिए y का डेरिवेटिव आ गया विद रेस्पेक्ट टू x. So there is only one type of derivative, it is derivative of y with respect to x, because y only depends on x. Therefore, this equation is an example of ordinary differential equation. So let there be another example. Say I will use y is a function of
t only. It depends only one variable, that is t. So I have equation d2y by dt2 plus 3dy by dt is equal to 4. So this is another equation. इसमें y सिर्फ एक ही वेरिएबल t पर डिपेंड करता है, तो ये भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी. नाउ व्हाट इज अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसा होता है कि से फॉर एग्जांपल हमारी जो फंक्शन y जो है इट इज फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स x एज वेल एज t. इसलिए यहां पर दो डेरिवेटिव्स बनेंगे. यहां पर हमारा डेरिवेटिव होगा dy by dx भी होगा यहां पे, और dy by dt भी होगा. सो वी हैव टू डेरिवेटिव्स. और सेकंड डेरिवेटिव अगर लेंगे आई विल हैव d2y by dx2, तो ये भी होगा इसमें डेरिवेटिव एक, second derivative of y with respect to x, and we will have second derivative of y with respect to t. तो अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जिसमें ये डेरिवेटिव्स होंगे दोनों, क्योंकि y जो यहां है दो वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रही है, तो इसलिए यहां पर हमारे पास दो डेरिवेटिव्स हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव्स एंड दीज आर द सेकंड डेरिवेटिव्स. तो जिस इक्वेशन में जो डिफरेंशियल इक्वेशन इस फंक्शन को लेके बनेगी, इन डेरिवेटिव्स को लेके बनेगी, दैट विल बी द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. से फॉर एग्जांपल वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन दैट यू राइट d2y by dt2 is equal to v square d2y by dx2. Now this is a डिफरेंशियल इक्वेशन. इसमें यहां y का सेकंड डेरिवेटिव है और ये एक कांस्टेंट है, और ये y का सेकंड डेरिवेटिव है विद रेस्पेक्ट टू x, और ये y का सेकंड डेरिवेटिव है विद रेस्पेक्ट टू t. तो ऐसी इक्वेशन जिसमें वो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो दो हैं, यहाँ t और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, तो इस हिसाब से दो डेरिवेटिव्स बन जाते हैं और एक इक्वेशन उनको मिला के बनाई हमने, दैट इज द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. बाय द वे दिस इज द equation of a one dimensional wave. What is this? It is equation of one dimensional wave. So it is one dimensional wave equation. So v इसमें constant है. This is the speed of the wave. The speed of wave. तो ऐसा कोई भी, अब मैं रफली कोई हम इक्वेशन बनाते हैं. से y is a function of x and z फॉर एग्जाम्पल. तो अगर हमारे पास इक्वेशन होगी dy by dx प्लस df by dz से इसका सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं प्लस 3x प्लस 4z इज इक्वल टू 0, या ऐसे लिख सकते हैं. सो इसमें y के जो हैं डेरिवेटिव्स हैं, एक है विद रेस्पेक्ट टू x, दूसरा है विद रेस्पेक्ट टू z. तो ये होगी आपकी, ये एक और एग्जांपल है, कोई इक्वेशन नहीं है, रफली आर्बिट्रली मैंने एक इक्वेशन बनाई, बट ये भी मैथमेटिकली एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है. तो यहाँ जो डिपेंडेंट वेरिएबल y है, सॉरी यहाँ f नहीं है, ये भी dy है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल y जो है इसका एक डेरिवेटिव है विद रेस्पेक्ट टू x और दूसरा डेरिवेटिव है विद रेस्पेक्ट टू z. तो ये आपकी होगी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. इनफैक्ट इस इक्वेशन का x अगर हम 3 डायमेंशन में लिखें तो ये बनती है d2y by dt2 is equal to v square d2y by dx2 d2y by dy2. सॉरी, इसमें हम y फिर यहाँ फंक्शन को कुछ और लिखना पड़ेगा. से यूजुअली हम साई लिखते हैं यहाँ पे, तो अगर हम साई कहेंगे, साई इज अ फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स x, y एंड z. ये भी वेरिएबल कहलाता है. इनफैक्ट
आपने शायद पढ़ा होगा जो इक्वेशन है वेव फंक्शन की, ठीक है, वहां पर हम यही सिंबल यूज करते हैं. सो d2 psi by d t2 is equal to v square d2 psi by dx2 plus d2 psi by dy2 plus d2 psi by dz2. तो ये है 3 डायमेंशनल वेव इक्वेशन इस सिचुएशन में. तो ये भी पार्शियल, हम एक इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है, पार्शियल भी. अब इसमें हम ये d सीधा नहीं लिखते हैं, हम इसको t ड्रा करके लिखते हैं. क्या लिखते हैं? t ड्रा करके. तो इसको बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव. इस डेरिवेटिव को बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव. से जब हम लिखते हैं, से हम लिखेंगे phi इज अ फंक्शन ऑफ, या हम सिंपली लिखेंगे y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t. दोनों पे डिपेंड करता है. तो जब हम y का डेरिवेटिव लेते हैं विद रेस्पेक्ट टू x, तो हम लिखेंगे यूजुअली dy by dx हमें लिखना चाहिए. हम लिखते हैं इंस्टेड वी राइट कर्ली d by कर्ली d. यहाँ पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है क्योंकि जब y दोनों पे डिपेंड करता है, इसका मतलब t भी वेरिएबल है और x भी वेरिएबल है. मगर जब हम डिफरेंशिएट करते हैं y को विद रेस्पेक्ट टू x, तो उस दौरान हम t को कांस्टेंट रखते हैं. तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव कैसे लेते हैं? मैंने इसे dy by dt वी कीप t कांस्टेंट. तो इस दौरान जब हम ये डेरिवेटिव ले रहे हैं, हम t को कांस्टेंट मानते हैं. इसी तरह जब हम लिखते हैं dy by dt, तो उसके हम लिखने का तरीका हम लिखते हैं पार्शियल डेरिवेटिव dy by dt कर्ली d. तो इस दौरान हम लेते हैं टेकिंग, इस दौरान हम टेकिंग t एज कांस्टेंट. t कांस्टेंट नहीं है, पर हम लेते हैं टेकिंग x एज कांस्टेंट. सो व्हेन वी टेक डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, वी टेक t कांस्टेंट, एंड व्हेन वी टेक डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t, वी मेक और वी टेक x कांस्टेंट ड्यूरिंग दैट टाइम. So this is one classification. So we can go to other classification as well. So let me now move to the next page. It is not rather actually classification. Now we have types of differential equations, and we'll talk about order of differential equation. And then we'll talk about degree of differential equation. So order of differential equation क्या है? तो इसमें जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव हाईएस्ट डेरिवेटिव है तो ऑर्डर इज 1. सो इट इज ऑर्डर इज द simply highest derivative. Highest derivative. If this first derivative, highest derivative और first derivative है, तो ये first order differential equation होगी. अगर highest derivative दूसरा derivative होगा d2y by dx2, तो वो second order differential equation होगी. So for example, let us take examples. So dy by dx plus 2y is equal to 4. So this in this equation, what is the highest derivative? This is the function. There is no derivative here. This is the first derivative. So it is order is 1. So it is first order. So this is फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है. अब दूसरे हम लिखेंगे. नाउ इफ आई राइट d2y by dx2, ये 4 यहाँ पे है 4 टाइम्स, प्लस 6 टाइम्स dy by dx प्लस 8 टाइम्स y इज इक्वल टू 9. तो इसमें क्या है? यहाँ ये खाली फंक्शन है, ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये सेकंड डेरिवेटिव है. तो ये कौन सी इक्वेशन हो गई? ये हो गई सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. इस तरह अगर इसमें थर्ड डेरिवेटिव होगा, वहां तो हम नहीं जाते हैं यूजुअली,
So that would be third order differential equation. The order is the highest derivative. Now, what is the degree of a differential equation? Degree of a differential equation is the power of highest derivative. Power of the highest derivative. इक्वेशन में देखना है हाईएस्ट डेरिवेटिव पहले कौन है, फिर उस हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर जो होगा डेट वुड बी द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से। अगर हम यहां देखेंगे इसमें, इसी इक्वेशन में इस इक्वेशन में अगर हम देखेंगे ये डेरिवेटिव है ही नहीं, यहां डेरिवेटिव है और इसके बाद बड़ा कोई डेरिवेटिव नहीं है, हाईएस्ट डेरिवेटिव यही है। इस हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर यहां क्या है लिखा नहीं है, बट 1 है इसका पावर। तो इसलिए इस इक्वेशन का डिग्री क्या है, इसकी डिग्री 1 है। हम कहते हैं इट्स अ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ये फर्स्ट ऑर्डर इट्स अ फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल, फर्स्ट ऑर्डर तो है ही, तो इसकी डिग्री 1 है। सो इट इज डिग्री इज 1, or I can write sorry, it has gone different way. So it is degree is 1. So degree is 1. So we say it is first degree डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ इस इक्वेशन को अगर हम देखते हैं, इसमें आपका हाईएस्ट पावर कौन है, यहां पर हाईएस्ट पावर ये है क्योंकि ये फर्स्ट डेरिवेटिव ये है, ये सेकंड डेरिवेटिव। अब इस सेकंड डेरिवेटिव का पावर क्या है, इसका पावर भी 1 ही है, इसका पावर भी 1 था। सो ये भी, इसकी डिग्री भी 1 है, इसको भी हम कहेंगे फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अगर इस इक्वेशन को मैं मॉडिफाई करता हूं, इस इक्वेशन को अगर मैं मॉडिफाई करता हूं और मैं लिखता हूं इस इक्वेशन को ऐसे 2, यहां पे मैं 2 पावर लिखता हूं और यहां पे मैं 3 पावर लिखता हूं, तो अब सिचुएशन बदलेगी। अब सिचुएशन क्या होगी, नाउ व्हाट विल बी द न्यू सिचुएशन। अब ये कौन सी इक्वेशन, ये भी यहां चेंज होगा। ऑर्डर इसका क्या होगा, ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर अगर हम बोलेंगे इस इक्वेशन का, तो हम इस इक्वेशन पर गौर कर रहे हैं, इसका हमने चेंज किया, तो इसका ऑर्डर क्या है और इसकी डिग्री क्या है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए ऑर्डर हम किसे बोलते हैं, हाईएस्ट डेरिवेटिव देखना है आपको। इसमें डेरिवेटिव y है, यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव है dy by dx, यहाँ सेकंड डेरिवेटिव है d2y by dx, तो सेकंड डेरिवेटिव, तो इसका ऑर्डर 2 है। अच्छा, नाउ डिग्री किसे बोलते हैं, डिग्री इज पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन है, ये तो हाईएस्ट डेरिवेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव। इसका पावर कितना है, इसका पावर 2 है, तो इसकी डिग्री 2 है। सो आई विल कॉल इट एज सेकंड ऑर्डर, आई विल कॉल इट एज सेकंड ऑर्डर, और फिर सेकंड डिग्री differential equation. So this is how we'll do it. Now we write some equations and then we'll determine what is their order and what is their degree. Say for example I will write another equation. यहाँ थोड़ा हम स्पेस क्रिएट करते हैं। So I write equations. Say let me write an equation 2d2y by dx2 plus 3d2y by dx d3y by dx3 third derivative plus 4 dy by dx, इसका पावर 2 है, इसका पावर 3 है, इसका पावर 4 है,
plus 5y is equal to 6. So I have written this equation. What is the order of this equation and what is the degree of this equation? This is our question. So order में हम क्या देखते हैं? We see the highest derivative. तो देखिए डेरिवेटिव, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये थर्ड डेरिवेटिव है और ये सेकंड डेरिवेटिव है. तो इसका ऑर्डर क्या है फिर? तो थर्ड डेरिवेटिव इज द हाईएस्ट डेरिवेटिव, सो ऑर्डर इज 3. एंड डिग्री इज द पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव. तो हाईएस्ट डेरिवेटिव हमारा ये है, तो इसका पावर कितना है? 3. तो इट इज डिग्री इज 3. सो विल कॉल इट एज थर्ड ऑर्डर and third degree differential equation. In fact, such equations are very complicated. We don't usually deal with them, but definition समझने के लिए हम बता रहे हैं. Now I will write another equation to make you understand. So let me write d2y by dx2 plus 2 dy by dx squared plus 4y is equal to 7. So what about this equation? बता दीजिए इसका ऑर्डर क्या है, सोचिए, और इसकी डिग्री क्या है. I give you a moment to think, or you can stop a video. So it is order. तो डेरिवेटिव ऑर्डर में डेरिवेटिव देखिए, फंक्शन, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, तो इसका ऑर्डर 2 है. फिर डिग्री देखिए, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव ये है, इसका पावर कितना है? इट इज पावर इज 1, सो इट इज डिग्री इज 1. सो इट इज सेकंड ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री differential equation. Second order and first degree differential equation. Now if I write another equation, the same equation, I will change certain parameters. So I will write d2y by dx2 raised power 2 plus 2 dy by dx raised power 3 plus 4 is equal to 0. So this is a differential equation. Now what is order and what is the degree? तो हाईएस्ट डेरिवेटिव यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव, यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव, सो ऑर्डर इज 2. व्हाट इज डिग्री? और डिग्री सेकंड हाईएस्ट डेरिवेटिव यहाँ पे है अब, तो इसका पावर क्या है? इसका पावर 2 है, तो डिग्री 2 है. सो इसको हम कहेंगे second order and second degree differential equation. So अब हम एक और क्लासिफिकेशन करेंगे, और उसके लिए हम पहले यहाँ स्पेस क्रिएट करेंगे थोड़ी. And now we will talk about another classification of differential equation. So differential equation can be classified also as linear differential equation and non-linear differential equation. तो लीनियर डेरिवेटिव हम जो बोलते हैं, think I will have to create space here if it allows me. So let us now move with this linear differential equation. कौन होती है? ये वो differential equation है कि
जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, से y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, और इसका जो डेरिवेटिव्स हैं से dy by dx एंड से d2y by dx2, ये जो है ये सिर्फ फर्स्ट डिग्री के हैं होने चाहिए, मस्ट बी ओनली ऑफ फर्स्ट डिग्री। यानी इनका जो पावर है इट शुड बी इक्वल टू 1। और दूसरा, इनका कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी कॉम्बाइंड टुगेदर। y और dy नहीं होना चाहिए, y और d2y और dx2 नहीं होना चाहिए, या dy dx और d2y dx2 आपस में मिला हुआ नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा होगा देन इट इज अ नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इसमें कंडीशंस हैं कि नंबर 1 कंडीशन ये है कि y यानी जो डिपेंडेंट वेरिएबल है y और इसके जो डेरिवेटिव्स हैं उनका पावर सिर्फ 1 होना चाहिए, फर्स्ट डिग्री होनी चाहिए, पावर ओनली 1, एक बात। और दूसरी बात जो है, ये आपस में कंबाइंड नहीं आने चाहिए, इनका प्रोडक्ट किसी टर्म में नहीं होना चाहिए। तो ये दूसरी हम कंडीशन बोल सकते हैं, दूसरी कंडीशन। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो ये इक्वेशन लीनियर कहलाएगी। से अगर हम लिखेंगे एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल्स देंगे इसमें। अगर हम लिखेंगे 2dy by dx प्लस 5y इज इक्वल टू 7x, सो इसमें y का भी पहला पावर है, इसका डेरिवेटिव जो है उसका भी एक ही पावर है, और कहीं पर y और डेरिवेटिव मिला हुआ नहीं है, तो इसलिए ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है। अगर हम लिखेंगे से 3d2y by dx2 प्लस 2dy by dx प्लस 3y इज इक्वल टू 17, तो ये इक्वेशन है। तो इसमें y है तो एक ही पावर है, डेरिवेटिव है, पहला डेरिवेटिव एक ही पावर है, सेकंड डेरिवेटिव उसका भी एक ही पावर है, और कहीं पे आपस में मिले हुए नहीं है, तो ये भी लीनियर इक्वेशन है। सो दिस क्वालिफाइज एज ए लीनियर इक्वेशन। और इसी तरह अगर हम लिखेंगे से x क्यूब dy by dx या d2y by dx2 प्लस x स्क्वायर dy by dx प्लस 2y इज इक्वल टू cos ऑफ x, तो इसका क्या है ख्याल? तो यहाँ y फर्स्ट डेरिवेटिव में है, यहाँ y का फर्स्ट डेरिवेटिव है, उसका यहाँ y का पावर 1 है, यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव का पावर भी 1 है, सेकंड डेरिवेटिव का पावर भी 1 ही है, और यहाँ मिला नहीं है, y और dy नहीं मिला है, dy by dx x स्क्वायर के साथ मिला हुआ है, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ यानी y के साथ कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। इस तरह यहाँ भी x क्यूब है, सो ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। सो दिस इज ऑल्सो ए लीनियर इक्वेशन। अब देखिए इन इक्वेशंस में अगर थोड़ा कुछ चेंज होगा, कोई भी कंडीशन वहाँ पर जो है यहाँ पे जो है नॉन लीनियर हो जाएगी सिंपली। फॉर एग्जांपल इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे थोड़ा अल्टर करता हूँ। नाउ इफ आई गो टू आई राइट से 2dy by dx प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 7x, तो ये स्क्वायर की वजह से, क्योंकि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है इसका सेकंड पावर आ गया, तो हमने बोला पावर शुड बी ओनली 1, यहाँ पावर 2 है, तो इसकी वजह से ये नॉन लीनियर हो गई। या अगर यहाँ पावर हम इसको अगर हम लिखेंगे यहाँ 5y इज इक्वल टू 7x और यहाँ 2 लिख दिया हमने, तो चूंकि यहाँ भी पावर 2 आ गया डेरिवेटिव का, तो ये भी नॉन लीनियर कहलाएगी।
सो नॉन लीनियर के एग्जाम्पल्स। अब इस इक्वेशन में कोई भी आप चेंज करो, अगर हम लिखेंगे इसे, इस इक्वेशन में मैं लिखता हूं थोड़ा एक और अल्टरेशन, इसको मैं करता हूं अल्टरेशन, 2y dy by dx प्लस 5 इज इक्वल टू 7x। तो थोड़ा मैंने चेंज किया, ये y मैंने इसके साथ मिला दी, तो y और dy by dx आपस में एक ही जगह आ गई, प्रोडक्ट इनका आ गया, शुड नॉट बी कंबाइंड टुगेदर, मीन्स उनका प्रोडक्ट नहीं आना चाहिए, तो ये इक्वेशन भी नॉन लीनियर हो जाएगी। इसी तरह कहीं भी आपका जो है आप बना सकते हैं इसे, यू राइट d2y by dx2 स्क्वायर प्लस dy by dx इज इक्वल टू x। तो ये इक्वेशन भी नॉन लीनियर है, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव जो है इसका दूसरा पावर आ गया, ये इसको नॉन लीनियर बनाएगी। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ differential equation on the basis of linear and non-linear. We usually talk about linears. We'll see. Now here I will conclude this lecture for today. Thank you very much.